Hello friends, in this lecture I am going to discuss basic concept of database management system. Yeah, you can say that introduction of database management system. In this lecture I am going to cover introduction of database management system, application of database system, purpose of database system, data view, instance and schema, database architecture, and data independence, and after that conclusion. So now let's start from database. Basically, first term is data. What is data? So data is basically collection of a facts such as numbers, words, measurement, observation and many things more. कहने का मतलब है कि सपोज मैंने किसी से कहा कि भाई तुम्हारी एज क्या है. He says कि 25 means that 25 is a data. किसी से पूछा गया भाई कि इस कमरे की लेंथ क्या है. Suppose he says 5 meters means that 5 meter is just like a data. Number, words, measurement, observation, many things more. Means data is just like collection of a facts. Facts represent number, words. So basically, this is work as data. Now, what is database? So database is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. तो कहने का मतलब है डेटाबेस जिसकी एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से मैनेज किया जाता है कि उसको हम इजीली एक्सेस करें, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम डेली लाइफ रोज गूगल यूज करते हैं. गूगल पर जैसे हम जाते हैं, कुछ लिखते हैं, सर्च, सपोज हमने लिखा नरेंद्र मोदी और सर्च मार, तो उससे रिलेटेड जो भी है सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाती है. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन आती कहाँ से? किसी ने किसी तो सेव किया, कहीं तो डेटा सेव है कि ताकि जैसे हम सर्च मारते हैं डेटा आ जाता है. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं डेटाबेस से. और डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन that is organized so that it can be easily accessed, managed, updated. डेटाबेस में कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह से मैनेज की जाती है कि उसको हम इजीली एक्सेस करें, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें, something like that. So basically, in short, database is a collection of information. Now, what is database management system? Database management system is a software for creating and managing database. कहने का मतलब है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जस्ट लाइक ए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारा डेटाबेस क्रिएट करता है, मैनेज करता है, अपडेट करता है, डिलीट कर सकता है. ये बेसिकली क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है यूजर एंड प्रोग्रामर को डेटा को इजीली क्रिएट कर सकें, रिट्रीव कर सकें, अपडेट कर सकें, मैनेज कर सकें. तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है कि जो स्टोरेज से रिलेटेड, रिट्रीव से, अपडेट से रिलेटेड सारे प्रोसेस को हैंडल करता है. इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स द स्टोरेज, रिट्रीव एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम. And also you can say that the database management system is a collection of interrelated data and set of program access to this data. So basically in this slide I have discussed what is data. Data is just a collection of facts such as number, words, measurement. Database is a collection of information, or data management system is just like a system software for creating and managing database. Now move forward. TVMS is TMS provide a way to store a data and retrieve the data in both convenient and efficient way. Database management systems are designed to manage large bodies of information. Management of data involves both defining structure for storage of information and provide mechanism for the manipulation of information, and database system must ensure the safety of information also. कहने का मतलब है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली ये एक लार्ज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं. और मैनेज में बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है, डेटा हमारा क्या स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, ये सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको हैंडल करता है. और ऑल्सो ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हम इसलिए डेटा को एक्सेस कर सकें, अपडेट कर सकें एंड डिलीट कर सकें. नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस. जो भी आज का युग है या मॉडर्न एरा में हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें देखते हैं कहीं ना कहीं वो डेटाबेस से रिलेट करती हैं. चाहे हम बिग बाजार जाए, मेगा मार्ट जाए, किसी मेगा मार्ट जाए, जिसके लिए हम क्या होता है कुछ भी सामान परचेज करते हैं, जो भी हमारा
सेलर होता है वो जस्ट सामान को पिक किया, उसने बार कोड से इसको रीड किया, वो बता देता है कि आपको कितने पैसे पे करने हैं। तो आपने कभी सोचा है कि भाई उसको कैसे पता चला कि प्राइस क्या है? बेसिकली क्या होता है कि उस आइटम से रिलेटेड जो भी उसका प्राइस है उनके पर्टिकुलर डेटाबेस में सेव है। जैसे उसने उसको एक्सेस किया, डेटाबेस से उसकी प्राइस पिक हुई और उसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया। तो बेसिकली वहाँ भी मेरा एक डेटाबेस यूज हो रहा है। इन सेल्स डेटाबेस सिस्टम आर यूज टू मैनेजिंग द कस्टमर प्रोडक्ट एंड ऑल द परचेज इंफॉर्मेशन। सपोज इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हम उसमें पेमेंट, रिसीव, एसेट, अकाउंट बैलेंस जो भी मेंटेन होता है बेसिकली ये डेटाबेस के थ्रू ही होता है। इन एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि जिस किसी से भी एम्प्लॉयज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जैसे लीव हुआ, पेरोल हुआ, सैलरीज हुआ। जैसे बेसिकली क्या होता है, हम ऑफिस में जाते हैं, हमने थंब इम्प्रेशन किया। थंब इम्प्रेशन करने का मतलब क्या होता है कि भाई हमने आज की अटेंडेंस दी थी, तो अटेंडेंस कहीं तो सेव होती होगी। जब हमारी सैलरी कैलकुलेट होती है तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग पूरी डिटेल निकाली जाती है कि हमने कितना लीव लिया, कितने दिन हम प्रेजेंट रहे, उस हिसाब से सैलरी हमारी कैलकुलेट होती है। तो बेसिकली जो हम अटेंडेंस करते हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरा डेटाबेस में सेव होता है। बैंकिंग सर्विसेज हुआ, यूनिवर्सिटीज हुआ, एवरीवेयर डेटाबेस is going to be used. They just you are using database. Now, purpose of database. Most why we need database system. तो बेसिकली क्या होता है, जो अर्ली डेज की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन आर स्टोर इन वेरियस फाइल्स एंड इट्स नीड डिफरेंट प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स एंड आल्सो नीड ए प्रोग्राम टू ऐड इंफॉर्मेशन इन दैट फाइल। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पहले की बात करते हैं उस समय क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारा था फाइल सिस्टम में स्टोर होता था। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा को ऐड करना है, तो बार बार हमें क्या होता है, एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता था। तो बेसिकली एक जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसके बहुत उसमें बहुत खामियां थी या बहुत प्रॉब्लम था। उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारा डाटाबेस सिस्टम मार्केट में आया था। तो उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। फाइल सिस्टम की बात करते हैं। कुछ दिन पहले आपको देखा होगा जब हम लोग जाते थे टिकट करवाने, तो बेसिकली क्या होता था, मैं पर्टिकुलर छोटे स्टेशनों की बात कर रहे हैं, जब ये कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं आया था तो उस समय क्या होता था कि हर ट्रेन का कोटा होता था और जो भी हमारा क्लर्क होता था वो एक रजिस्टर मेंटेन करता था कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के लिए कितने टिकट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। देन वो बताता था कि हमारे पास कोई टिकट है कि नहीं है तो बुक करता था, नहीं था नहीं बुक करता। तो बेसिकली वो क्या था, एक फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल था। तो जो फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या की थी, फर्स्ट वन थी डेटा डुप्लीकेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या था कि मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स होते थे, तो डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट फाइल। बेसिकली क्या होता था कि मान लीजिए मेरा नाम है प्रदीप यादव, एक फाइल में सेव है, दूसरे फाइल में, तीसरे फाइल में, हर फाइल में सेव है। तो बेसिकली क्या है कि प्रदीप यादव एक ही फाइल में सेव होनी चाहिए, बट इस केस में क्या है कि डुप्लीकेशन है क्योंकि हर फाइल में प्रदीप यादव सेव है। सेकेंड था डिफिकल्टी इन एसेसिंग डेटा। बेसिकली क्या होता था कि जब भी हम कोई डेटा एक्सेस करना चाहते थे तो हर बार हमें एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता था। नीड टू राइट ए न्यू प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ईच न्यू टास्क एवरी टाइम। तो हर टाइम हमें क्या एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता था। डेटा आइसोलेशन, इसमें क्या होता था कि जो भी हमारा डेटा था स्कर्ड इन वेरियस फाइल्स और फाइल में भी डिफरेंट फॉर्मेट। कहने का मतलब है कि कोई एक डाटा है, में भी हो सकता है कि वो वेरियस फाइल में फैला हुआ हो और हर फाइल का फॉर्मेट अलग हो। तो बेसिकली क्या होता था कि हर बार एक नया प्रोग्राम डेटा को एक्सेस करने के लिए लिखना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम था। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई डेटा है प्रदीप यादव है, वो कुछ फाइलों में है और हर फाइल का फॉर्मेट अलग है, तो हमेशा आपको एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता था उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क था। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन प्रॉब्लम थी इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इसमें क्या होता था कि फाइल सिस्टम में कुछ अगर आप न्यू कंडीशन अप्लाई करना चाहें या जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको अगर चेंज करना चाहें तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई न्यू कंडीशन एंड आल्सो डिफिकल्ट टू चेंज एग्जिस्टिंग कंडीशन। कहने का मतलब है कि हम
ये बहुत टफ था, एक नया कंडीशन अप्लाई करना या जो भी कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको अपडेट करना। एटोमिसिटी प्रॉब्लम, इसमें क्या था कि फेलर में लीव डेटाबेस इन इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट विथ पार्शियल अपडेट। फॉर डेटाबेस सिस्टम इट इज मस्ट दैट प्रोसेस शुड बी कंप्लीट। इसमें बेसिकली क्या था, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइल सिस्टम में होता क्या था कि सपोज दो अकाउंट है ए और बी, किसी इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन शेड्यूल है कि एक ट्रांजैक्शन होगा कि इस अकाउंट से कुछ पैसे बी को ट्रांसफर हो गया। तो इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि हमें अकाउंट ए से बी को पैसे ट्रांसफर करने 1000 रुपये, और सपोज लाइट चली गई या पावर फेलियर हो गया। उस समय क्या होता था कि जो अमाउंट है आपका अकाउंट ए से तो निकल चुका है लेकिन वो बी तक नहीं पहुंचा। मतलब क्या हुआ कि भाई जो अमाउंट था ए से तो डेबिट हो गया बट बी में क्रेडिट नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो डेटाबेस था वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में था, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी हमारा प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हुआ। मीन्स अगर ए से पैसे डेबिट हुए हैं देन बी में क्रेडिट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, जो भी डेटाबेस था उसका प्रोसेस इनकम्प्लीट रहा, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। बट फॉर डेटाबेस प्रोसेस शुड बी कंप्लीट। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी फाइल सिस्टम में थी। कॉन्करेंट एसेस, इसमें क्या होता था कि many systems allow multiple users to update the data simultaneously to make system performance faster. In such environment, introduction of concurrent update is possible and may result in inconsistent data. Two people reading a balance and updating it same time. कहने का मतलब ये था कि भाई उन्होंने क्या किया था, फाइल सिस्टम में क्या था कि मेनी यूजर एट ए टाइम डेटा को एक्सेस कर सकते थे। सिर्फ इसलिए किया गया था कि जो भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस हो वो फास्टर है। बट इसमें क्या होता था कि जब डेटा एट अ टाइम पे एक्सेस किया जाए तो सम टाइम हो सकता था कि प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती थी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि भाई किसी अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, दो क्लर्क हैं ए और बी। बी को 100 रुपये निकालने हैं और बी को 500 रुपये निकालने हैं। ए को 100 रुपये, बी को 500। तो बेसिकली क्या होता है कि जब निकालने जाते थे तो पुराना बैलेंस देखते थे कि भाई प्रीवियस बैलेंस था क्या। सपोज एट ए टाइम दोनों ने ट्रांजेक्शन किया, ए को दिखा 10,000, बी को दिखा 10,000। ए ने 100 रुपये ट्रांजेक्शन किया, बचा अमाउंट 9900। जब बी एसेस करने गया तो उसने प्रीवियस देखा 10,000, उसने किया 500। अब क्या होता है कि बी को 9500 दिखता है और ए को दिखता है 9900। बट इस केस में क्या होना चाहिए, अमाउंट 9400 दोनों को दिखना चाहिए। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि ए ने 100 रुपये निकाला, डेटाबेस मेरा अपडेट नहीं हुआ, उसको 9900 दिखा रहा कि भाई हमने 100 रुपये निकाल लिया, उसमें 9900 गया। जैसे बी निकालने गया, बी 99 में से 5 नहीं निकाला, उसने उसको प्रीवियस बैलेंस दिखा 10,000, 10,000 में 500 निकाला, उसको दिखा 95। बट अगर देखा जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ ट्रांजेक्शन अमाउंट शुड में 9400, बट ऐसा नहीं होता था। तो एक मेजर प्रॉब्लम फाइल सिस्टम में थी। सिक्योरिटी, उसमें क्या था, कोई भी यूजर कुछ भी कर सकता था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर पर्सन की एक नॉट एवरी यूजर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल द डाटा। कहने का मतलब होता है कि हर यूजर का एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होना चाहिए कि पर्टिकुलर यूजर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। बट फाइल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन सोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस इन मार्केट में आया। नाउ डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इस फिगर में आप देख सकते हैं 3 लेवल है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। नाउ फिजिकल लेवल क्या होता है, द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब कि हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड। कहने का मतलब है कि जो हमारा डेटा व्यू है या एब्स्ट्रैक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, लॉजिकल, व्यू। फिजिकल बेसिकली क्या होता है, इसको लोएस्ट लेवल बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। इसमें क्या होता है, ये डिस्क्राइब होता है कि डाटा कैसे स्टोर होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड। These records can be described as block of storage, megabyte, byte,
इन मेमोरी, दिस डिटेल आर हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर। बेसिकली क्या होता है, जो फिजिकल लेवल होता है हमेशा वो प्रोग्रामर इंजीनियर जो भी यूज कर रहा है उससे हिडन होता है। इसमें बेसिकली ये डिसाइड होता है कि डाटा बेसिकली एक्चुअली कैसे स्टोर होगा। लॉजिकल लेवल बेसिकली क्या बताता है कि क्या डाटा हमारा स्टोर होना है डेटाबेस में। जो भी हमारा प्रोग्रामर है, इंजीनियर है, जो भी है, सारे बंदे इस लॉजिकल लेवल पे काम करते हैं। इसी लेवल पर डिसाइड होता है कि हमें डाटाबेस में कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है, क्या हमें इंसर्ट करना है, क्या स्टोर करना है। फिजिकल लेवल था कि डाटा कैसे स्टोर होगा, उसमें डिसाइड होता था कि भाई स्टोरेज क्या होगा, एक डाटा कितनी मेमोरी लेगा, कितना मेगाबाइट या बाइट लेगा। लॉजिकल लेवल में बेसिकली जो भी हमारे प्रोग्रामर और इंजीनियर होते हैं इस लेवल पे काम करते हैं। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि क्या डाटा स्टोर होना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें डाटाबेस में रखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं रखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो, आपने पासवर्ड डाला, सबमिट किया, मैसेज आ गया कि पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसमें @ या स्पेशल कैरेक्टर यूज करो। तो मतलब बेसिकली ये चेक कहाँ हुआ, ये चेक हुआ लॉजिकल लेवल पे, क्योंकि लॉजिकल लेवल डिसाइड करता है कि क्या वहाँ स्टोर होना है। लॉजिकल लेवल को लगा कि भैया ये जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहा हूँ अप्रोप्रिएट नहीं है डाटाबेस के लिए, देन डाटाबेस स्टोर नहीं होगा। मीन्स बेसिकली कंडीशन जो भी चेक हुई है वो लॉजिकल लेवल पे हुई है। व्यू लेवल बेसिकली क्या होता है, हमें दिखता है। जैसे हमने फेसबुक खोला, हमने लॉग इन किया, जो भी पेज ओपन हुआ बेसिकली वो व्यू लेवल है। तो व्यू लेवल हमें दिखता है। देखिए इसमें क्या है कि एक फिजिकल और लॉजिकल लेवल के लिए मल्टीपल व्यू हो सकते हैं। इस फिगर में देखिए, इससे पता चलता है कि यहाँ पे एक फिजिकल लेवल है, एक हमारा लॉजिकल लेवल है, इसके साथ n नंबर ऑफ व्यू लेवल कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फिजिकल और लॉजिकल लेवल के साथ मल्टीपल व्यू लेवल हो सकते हैं। व्यू मतलब जो हमें दिखता है, फिजिकल हमें दिखता नहीं है, लॉजिकल हमारे प्रोग्रामर, इंजीनियर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होते हैं इस लेवल पर काम करते हैं। नाउ इंस्टेंस है, स्कीमा क्या होता है। The data are stored in database at a particular moment of time. That time is called instance of database। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम होता है जब डाटाबेस में हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे डेटाबेस का डिजाइन है क्या। अब ये तीन तरह के होते हैं, दिस आर फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। Design of database at physical level is called physical schema. How data are actually stored in memory described at this level। इस लेवल पे बस यही डिसाइड होता है कि एक्चुअली हमें डाटा को कैसे इंसर्ट करना है। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, जैसे मेगाबाइट लेगा कि बाइट लेगा। तो बेसिकली दिस ऑफ डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट फिजिकल लेवल इज कॉल्ड फिजिकल स्कीमा। हाउ डेटा आर स्टोर्ड इन मेमोरी डिस्क्राइब एट दिस लेवल। अब लॉजिकल लेवल की बात करते हैं। लॉजिकल लेवल डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल इज कॉल्ड लॉजिकल स्कीमा। प्रोग्रामर यहाँ पे काम करता है। डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट व्यू लेवल इज कॉल्ड व्यू स्कीमा। तो स्कीमा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिजाइन। अब बात करते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आजकल डिवाइडेड इन टू टाइप्स, वन इज 2 टायर और 3 टायर। 2 टायर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। इस आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सर्वर और क्लाइंट के बीच में होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट there is no any intermediate between client server. Due to this, it's run faster. Because of tight coupling in two tier architecture, it's run faster। कहने का मतलब है कि टू टायर जो आर्किटेक्चर होता है वो बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर के बीच में कोई भी एक इंटरमीडिएट नहीं होता। और देखिए जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट हम डेटाबेस से वैल्यू को एसेस करते हैं। जैसे सपोज एक ही स्टेशन से 2 क्लर्क हमारे टिकट बुक कर रहे हैं एक ही ट्रेन के लिए और एक ही डेस्टिनेशन के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट क्लर्क है वो भी डेटाबेस में एसेस देखता है कि भैया उस ट्रेन में कोई सीट है कि नहीं है। सेकेंड है वो भी यही देखता है कि वो डेटाबेस में ठीक है कि नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, सम टाइम क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसा मोमेंट आया कि दोनों जो क्लर्क है एट अ टाइम देख रहे हैं। तो बेसिकली इस समय क्या होता है कि जब एट ए टाइम देखते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन और क्योस क्रिएट हो जाता है।
बट प्रॉब्लम क्या है कि टिकट हमारे ऑल ओवर इंडिया बुक होती है। तो इस केस में बेसिकली क्या एज्यूम किया जाता है कि मान लीजिए अगर माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस रहता है, माइक्रो सेकेंड मीन्स 1 into 10 पे पावर -6, that is so low second, you can't imagine कि what is 10 पे मानो माइक्रो सेकेंड। तो मान लीजिए अगर माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस रहता है तो इस केस में क्या होता है, जिसने पहले रिक्वेस्ट भेजी वो पहले देखता है और बाद में जो भी रिक्वेस्ट जाती है बेसिकली एक क्यू में अरेंज हो जाती है। जैसे फर्स्ट यूजर अपना डेटाबेस एक्सेस करना छोड़ता है, दूसरा यूजर चला जाता है, तीसरी रिक्वेस्ट जाती है, चौथी रिक्वेस्ट जाती है, पांचवी रिक्वेस्ट जाती है। तो बेसिकली एज्यूम किया जाता है कि अगर माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस भी रहे तो इस प्रोसेस पे काम करता है कि ये एज्यूम किया जाता है कि दो रिक्वेस्ट के बीच में एटलीस्ट माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस होगा ही होगा। तो दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ टू टायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन है और डेटा सोर्स। डेटा सोर्स रिप्रेजेंट डेटाबेस, क्लाइंट सोर्स मीन्स यूजर। Advantage of two-tier architecture: easy to maintain, modification is easy, communication is faster। इसमें क्या होता है कि डिसएडवांटेज क्या है कि अगर नंबर ऑफ यूजर बढ़ते हैं देन इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाती है। नाउ थ्री टायर आर्किटेक्चर, in this you can see that there is a client application server, data source represent database, application server represent you can say that की logical level, and this is client मतलब view level। इन थ्री टायर स्ट्रक्चर क्लाइंट आया या क्लाइंट लेयर या प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन मतलब जो हमें दिखता है, एप्लीकेशन सर्वर मतलब बिजनेस लेयर जहाँ हमारी कोडिंग होती है, जहाँ हमारी वैलिडेशन चेक की जाती है। डेटा लेयर मतलब डेटाबेस। Client layer is also called presentation layer. It contains UI parts of our application. This layer is used for design purpose when data is presented to the user or input taken from the user. Now application layer. Application layer is a place where all application logics are written like validation of data, कैलकुलेशन ऑफ डेटा, इंसर्शन, डिलीशन, etc। कहने का मतलब है कि क्लाइंट लेवल क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में जो हमें दिखता है, जहाँ पे हम डिजाइन के बारे में काम करते हैं, जहाँ हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, यूजर को वैल्यू देते हैं। जैसे कुछ हमने सर्च किया, जो भी हमारा डेटा आया, तो सारी चीज़ें क्या होती है, व्यू लेवल पर या क्लाइंट लेवल पर हो रही है। जैसे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट किया, वो क्लाइंट लेवल पर हो रहा है। एप्लीकेशन लेवल में बेसिकली क्या होता है कि सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग होती है, अपना डेटा वैलिडेशन होता है, हम चेक करते हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है करेक्ट है कि गलत है। तो जो भी चीज़ें वैलिडेशन, डेटा कैलकुलेशन, सब कुछ जो चेक होता है वो एप्लीकेशन लेवल पर होता है। डेटा लेयर बेसिकली क्या होता है, जहाँ डेटाबेस मेंटेन होता है, उसको कहते हैं डेटा लेयर। एडवांटेज ऑफ डेटा आर्किटेक्चर: हाई परफॉर्मेंस, better reuse, improved data integrity, improved data security, easy to maintain, modification easy, do not affect other model applications from version good, increase complexity। This is a simple database architecture view. You can see here, this is represent database, here end user, here application request. Application request go to data management system, this go to database structure। Now this come from here, end user can access the particular डेटा। तो ना बेसिकली इसमें क्या होता है कि सपोज मैं एक यूजर हूँ, मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट गया एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर ने डेटाबेस को भेजा, डेटाबेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा, फिर एप्लीकेशन को जाएगा, फिर एप्लीकेशन यूजर को प्रोवाइड करेगा कि डेटा क्या है। नाउ डेटा इंडिपेंडेंस, the major objective of theta architecture is to provide data independence, which means that कि upper level और unaffected by change of lower level। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा लेयर है, दो पार्ट में डिवाइड है, एक लॉजिकल अरेंजमेंट, फिजिकल अरेंजमेंट। अगर हम कुछ भी चेंज फिजिकल में करते हैं देन उससे हमारा लॉजिकल अफेक्ट नहीं करेगा, अगर हम लॉजिकल में कुछ चेंज करते हैं तो उससे हमारा फिजिकल अफेक्ट नहीं करेगा। Data independence, there are two types, physical or logical। Physical data independence is the ability to modify the physical schema without requiring any change in application program। Modification at internal levels are changes in file structure, storage device, etc। Modification at the internal levels are generally required to improve the performance। Physical data independence separates the conceptual level from internal level. It is due to achieve physical independence।
This also allows to provide a logical description of database without need to specify physical structure. कहने का मतलब है कि अगर हम फिजिकल लेवल में कुछ भी चेंज करते हैं तो इससे हमारा एप्लीकेशन लेवल या लॉजिकल लेवल कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सेम लॉजिकल लेवल में क्या होता है कि हम लॉजिकल में चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं तो हमारा फिजिकल इफेक्ट नहीं करेगा। जो भी चेंजेस बेसिकली होता है किस लिए, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। Logical data independence is able to modify the conceptual schema without requiring any change in application program. Modification at logical level are required whenever the logical structure of database is changed. Logical data independence separates the external level from the। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर हम फिजिकल लेवल पर कोई भी चेंज करते हैं तो जिससे हमारा लॉजिकल लेवल इफेक्ट नहीं करेगा, अगर लॉजिकल लेवल कोई चेंज करते हैं तो हमारा फिजिकल कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये एक हमारा डेटाबेस एनवायरनमेंट है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड यूजर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है, फिर डेटाबेस से एक्सेस होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो इस डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस को डिजाइन करता है। तो बेसिकली दीज आर सम फैक्टर्स कि देख सकते हैं कि डेटाबेस एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो नाउ बेसिकली इन दिस लेक्चर we have discussed many things. So now let me conclude as once again. Basically data is a collection of facts such as numbers, words, measurement, observation and many things more. Database is a collection of information, or database management system is a system software that used to manage and create the database, or data are organized in so database management system, just you can say that it provide a systematic way to retrieve the data, update the data, delete the data, manage the database, something like this. Application of database or in sales, accounting, HRM department, banking services, universities. Purpose of database system to avoid some problem in file system database coming to market, because in file system there are many problem. First one, data duplication. Second one is difficulty in accessing data, data isolation, integrity problem, atomicity problem, concurrent access and security. To resolve this issue, database come into market. There are three levels of database. First one is view level, logical level and physical level. Physical level decide कि how data is insert, logical level decide कि what data are insert, और view level decide कि क्या दिखना चाहिए आपको, which type data which you want to show, yeah, which type data you want to show. Now instance is a moment when data insert in database. That particular moment is called instance, or schema basically define overall design of database. Schema are three types: physical, logical and view. Database architecture basically define two types: two tier and three tier. In two tier there is no intermediate between client and server. Communication takes directly between client and server. Now two tier structure, you can see diagram here. Advantage of two tier was easy to maintain, modification is easy, communication is faster. In three tier architecture there is a data source, application and client application. In client layer इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये यूआई कंटेन करता है जो हमें दिखता है। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली जो भी वैलिडेशन हुआ, कंडीशन हुआ, हम अप्लाई करते हैं। डेटा लेयर बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस स्टोर करता है। इसके फायदे क्या थे, हाई परफॉर्मेंस, बेटर यूज, डेटा इंटीग्रिटी, इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी, इजी टू मेंटेन। नाउ दिस इज डेटाबेस आर्किटेक्चर व्यू। नाउ डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स कि अगर हम फिजिकल लेयर में कोई चेंज करते हैं तो उससे हमारा लॉजिकल लेयर अफेक्ट नहीं करता है, अगर लॉजिकल लेवल में चेंज करते हैं तो हमारा फिजिकल लेयर अफेक्ट नहीं करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।